जहाँ जहाँ जमहूरियत है। अबे कहाँ कहाँ जमहूरियत है? मेरी बात को बैठ के टेलीविजन के ऊपर अजय तब आप लोग ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जहाँ जहाँ जमहूरियत है। अरे भाई कहाँ कहाँ जमहूरियत है? भाई आप मेरी बात को कहाँ है जमहूरियत? बिना वजह बैठ के कैमरा चला और जबान चल पड़ी। जहाँ जहाँ जमहूरियत है कहाँ कहाँ जमहूरियत? अच्छा आप ऐसा बात कीजिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी तरबेला डैम की चारों सुरंगों से बेकार पानी आ रहा है। तरबेला? ये क्या पोछ बात की आप? ऐसा बात करें आपने अपनी बात से हटो मत। तरबेला हो या मंगला हो या कुछ भी हो, मेरी बात का जवाब दो। तुमने कहा जहाँ जहाँ जमहूरियत है, कहाँ कहाँ जमहूरियत? दीजिए ना जवाब। नहीं तो आप मेरी बात तो मुकम्मल क्या मुकम्मल करने? आपको जरूरत ही नहीं मुकम्मल करने की। बात मैं समझ चुका हूँ आपका मतलब। जहाँ जहाँ जमहूरियत है, कहाँ कहाँ जमहूरियत है, जवाब देने में 2 महीने लग जाएंगे। आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, तेरे मुताबिक मीडिया को आजादी की जरूरत। ठीक है? ठीक है। और अगर मीडिया आजाद हो गया तो ये जो चैनल के मालिकान है ये मकबूता हो जाए। आप समझ नहीं सकते, आप लोग बच्चे हैं अभी। हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम भी चलें तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। भाई किसी भी मुल्क में अदलिया और मीडिया दोनों को आजाद होना चाहिए। हाँ तो भाई तुम कर लो। तुम अगर करवा सकते हो तो तुम कर लो, हुकूमत के बस का तो नहीं। तो क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट फिर से होने वाला है? क्या पाकिस्तान की जेल तोड़कर पीटीआई समर्थक इमरान खान को रिहा करा लेंगे? ये वो सवाल है जिसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान में चल रही उठापटक। पाकिस्तान में सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक जनता बगावत पर उतर आई है। जनता की बगावत से डरे शहबाज शरीफ बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तो कभी जनता पर गोलियां चल रही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी फजीयत हो रही है। इसलिए पाकिस्तान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घाटी में आतंकवादी भेज रहा है। इसलिए पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। कश्मीर में हो रहे चुनाव में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक अपनी नाकामी और गलती छिपाने के लिए ऐसी हरकतें करता रहेगा। Thousands of protesters are gathering in Pakistan's capital for a rally organized by former Prime Minister Imran Khan. Kamal Haider has more from Islamabad. It is the first time since the arrest of the former Prime Minister Imran Khan that the party is actually allowed by the country's High Court to hold a rally just on the outskirts of Islamabad. But the authorities have made obstacles along the routes by placing hundreds of containers, sealing Islamabad and Rawalpindi, and making it difficult for people to reach the venue. But despite all the obstacles, which has brought life to a virtual standstill in the city of Rawalpindi and Islamabad, which looks more like a city under siege, containers have been put on all major avenues leading in and out of the city, which of course is proving to be adding to the difficulties of those supporters who want to attend this rally. It was very difficult to reach the venue of the rally as all roads have been blocked, but we are determined and these barriers can't stop us. If there is a call from Imran Khan to protest and we don't come, that's not possible. We are with him until our last breath. I came here to show solidarity with my leader Imran Khan and to protest against his illegal arrest. He should be released immediately. They, of course, are determined. All along the way, we have seen people breaking those barriers and moving towards the venue. Thousands of people have already come here. This, of course, will be seen as a major success by the Pakistan Tehreek-e-Insaf, which says that it has the support of the masses of Pakistan. The government, of course, has been becoming more and more unpopular because of the high inflation and the fact that there are serious allegations about rigging the election, and there are growing demands from the people that the former Prime Minister Imran Khan should be released unconditionally. This is going to be indeed a show of force to prove that despite the obstacles and despite the setbacks, the people here are determined to turn up in large numbers. Kamal Haider, Al Jazeera, Islamabad. On to breaking developments coming in right this minute from Pakistan itself. Islamabad police outside the country's parliament, in the latest that we are gathering at this point, they are attempting to arrest lawmakers belonging to former Prime Minister Imran Khan's PTI. In fact, the development follows last evening's chaotic and violence-ridden PTI gathering, remember, that was allegedly organized without seeking permission. That's the situation on the ground right now as we track the latest coming in. Our Pakistan Bureau. إلى باكستان حيث تظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إسلام آباد
على الرغم من العوائق التي وضعتها السلطات لقطع الطرقات أمام المحتجين. وأطلق المحتجون هتافات نددوا فيها بالمحاكمات التي يخضع لها رئيس الحكومة السابق، معتبرين إياها حملة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة. المحتجون نددوا كذلك بعدم تمكين نواب حركة الإنصاف من تشكيل الحكومة رغم حصولهم على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير الماضي. अब अगला इलेक्शन जब होगा तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है ना, तो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, बिल्कुल ये अगले इलेक्शन में ऐसे नहीं होगा। अच्छा। और अगला इलेक्शन इतनी दूर है नहीं है वैसे, हाँ ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर हो जाएगा। बहुत तब्दीली आ चुकी होगी और आप फिर उस वक्त मुझे पूछेंगे कि आपको कैसे पता था। हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है, आखिरी हद तक लड़ना है। मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है, सियासत तो करी तुम रहे। हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है, आखिरी हद तक लड़ना है। मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है, सियासत तो करी तुम रहे हो, किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। इमरान खान मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब था कि मेरी कौम खौफ का भूत तोड़ दे, ये देखो तुम्हारी कौम ने खौफ का भूत तोड़ दिया है। आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो आपके हुकूक के लिए एब्सोल्युटली नाट कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। Mr. Sher Ali Afridi, MPA, to please move for suspension of Rule 124. Mr. Speaker, I wish to move that Rule 124 under Rule 240 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988 may be suspended, and allow me to move resolution in the House. The motion before the House is that Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the Honourable Member to move the resolution. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the rule is suspended. Mr. Sher Ali Afridi. जनाबी स्पीकर, ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर अपने फ़राइज़ आईन और कानून के मुताबिक सरअंजाम दे, लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत, इनकी अपनी हलफ से इनखिराफ है, जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। यह असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पर इस चीज़ का पुरज़ोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फ़ौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात से बाज रखा जाए। ये ऐवान फ़ौज की लाज़वाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान की ज़ाती मफादात और ज़िद व अना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और ये नुकसान जारी है। ये ऐवान पुरज़ोर मुतालबा करता है कि फ़ौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलविस है, सियासत से दूर रहे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। यह असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पर PTI की क़ियादत और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और इस बात का भी पुरज़ोर मुतालबा करती है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार PTI लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहा किया जाए, वरना हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के चंद अफसरान होंगे। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर शर्मनाक हमले की ज़िम्मेदार है और हर मुलविस शख्स बशमूल दांधली की बिसाकियों पर खड़े वज़ीर आज़म आईन और कानून के तहत जवाबदा है। यह ऐवान इमरान खान बानी PTI की अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
Is it the desire of the House that a resolution moved by the honorable member may be passed? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed. हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान की ISI की लोगों ने हमें बाकायदा टार्चर किया है, हमारे खिलाफ उन्होंने छापे पड़वाई है, हमारे बच्चों को उठाया है, हमारी खवातीन की तजलील की है, और आज हमारी खवातीन की तजलील की है, और आज हमारी खवातीन की तजलील हुई है, कल पूरी खैबर पुख्तनख्वा की खवातीन की तजलील ये कराएंगी अगर हम आज उनको नहीं रोकेंगे। और ईमान का जो तीसरा दर्जा है ना, वो किसी को दिल में बुरा कहना है, जो दूसरा दर्जा है ईमान का वो रोकना है, और जो पहला दर्जा है ईमान का वो हाथ डालना है। अब हम हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह, इनकी गिरबानों में हाथ डालेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान का पहला दर्जा है कि हम इनकी गिरबान को हाथ डालें। अगर कोई हमें हाथ डालता है तो हम भी उनकी गिरबान को हाथ डालेंगे, क्योंकि आईन को ये नहीं मानते। अगर ये आईन को नहीं मानते तो असेंबली की फ्लोर पर मैं कहता हूं कि मैं किसी आईन को फिर नहीं मानूंगा। इसकी वजह यह है कि अगर ये तनख्वाह भी लेते हैं इस आईन के जरिए, ये अपने बच्चों को पालते भी है, उनको हजारों मुरब्बी भी मिलती है रिटायरमेंट की बात, इनको प्लाट्स भी मिलती है, उनको कारोबार के लिए पैसा भी दिया जाता है। अगर ये नहीं मानते तो फिर हम क्यों माने, हम क्यों इस आईन को माने? फिर इस आईन में अमेंडमेंट करो, इस आईन में कहो कि ये जो लोग हैं, या ये ईसाई है या पाकिस्तानी फौज है या जो ये बच्चे कुछ लोग हैं, उनके लिए अलग कोई शक डाल दो कि ये सब गुनाहों से मुबर्रा है, ये जो भी करेंगे ये करे। तो ठीक है, पाकिस्तान में हम सियासत करेंगे तो करेंगे, फिर नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये वो हकायक थी जो मैंने बयान की। मैं अपने सारे ऐवान को कहता हूं कि जिसके साथ भी ये जुल्म किया है और जिसने भी किया है, उनका बाकायदा नाम ले ले ताकि ये लोग बेनकाब हो जाए। रुपए लेते थे, मलक साहब इनको 50,000 रुपए देने पर राजी हुआ कि आप लोगों ने टिक टाक जो है मातम करना है। इन्होंने कहा ठीक है, बल्ले बल्ले हो गए। जब वीर बाबू गई, उसने मैयत को देखा तो मलक साहब का बेटा जो था वो वेस्ट इंडीज का बबलू था। ना उसका चेहरा देखने लायक, ना उसकी आंखें देखने लायक, इतने बड़े बड़े होंठ, और ये दुबला पतला सा जो है पड़ा हुआ था। अच्छा, उसकी मीडिया टीम उस मैयत को देखे कि इसकी कौन सी जगह पर हम रोए। वीर बाबू ने उसका कहा कि इसका चेहरा देखो कितना प्यारा है, कोई नहीं रोया। लेकिन उसमें जो है एक ईमानदार खातून थी जो बहुत रो रही थी, और अभी तक जो है वो टीवी पर बैठकर रो रही है। वो खुल के रोई। जब कोई नहीं रो रहा था तो वीर बाबू ने जो है मलक साहब को कहा कि ये भाईजान, ये अपने पैसे वापस ले लो, यहां पर जो है कोई नहीं रो रहा, ये एक रो रही है, इसको हम पैसे दे देते हैं। जब वो जो रो रही थी, वो उससे वीर बाबू ने पूछा कि हमें तो रोना नहीं आ रहा था, तुम क्यों रो रही थी? उसने कहा मैं इस वजह से नहीं रो रही थी कि मैयत पर मुझे अपनी पैसों की फिक्र थी कि अगर मैं ना रोई तो पैसे चले जाएंगे। तो जनाब स्पीकर, वीर बाबू उस मैयत को दफना ही दें, क्योंकि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर चुकी है, बार बार ये डिमांड कर चुकी है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें जो बंदा मुलविस है उसको सजा दी जाए, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाए जाए। लेकिन कोई जो है उस पर कान नहीं धर रहा। लेकिन 9 मई सिर्फ नहीं, 9 मई से पहले जिसने हमारे लीडर को कॉलर से पकड़ा था और उसको नारवा और नाहक घसीट रहे थे, उसको भी जो है इंशाअल्लाह ताला हम कानून के दायरे में लाएंगे, उसको भी भरपूर सजा होगी। सिर्फ 9 मई नहीं, जिस बंदे ने ये हुक्म दिया था कि 13 और 14 मार्च को समान पार्क पर मेरे लीडर के घर पर हमला करे, उसको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उसको भी सजा दी जाएगी। फिर जनाब स्पीकर, 9 मई का नुकसान सबसे ज्यादा हमें हुआ। हमने शोहदा पेश किए इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर। हम इमरान खान से क्या चाहते हैं? इमरान खान हमारा कौन है? हम तो आए नहीं थे इस पार्लिमानी सियासत के लिए, हम आए थे इनकिलाब के लिए, तब्दीली के लिए, इस निजाम को बदलने के लिए।
لیکن اگر عمران خان کے پاس ہم تھے, عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم رہیں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی تب بھی تھے, اب بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اکانومی ریفارمز, فارن ریزروز, کرنٹ ڈیفیسٹ, فارن ڈیفیسٹ, سرکولر ڈیٹ, ان سب کا پوچھو 9 مئی. اگر پوچھے تو ڈنڈے برستے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, حق بول نہیں سکتے. اگر آپ لوگوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو ڈنڈوں سے نہیں, اگر آپ نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو بندوقوں سے نہیں. نرک کے بچے بنو اور اکانومی میں ہمارا مقابلہ کرو, معیشت میں ہمارا مقابلہ کرو, ریفارمز میں ہمارا مقابلہ کرو, پاکستانی عوام کو شعور دینے میں ہمارا مقابلہ کرو. ان کو سیاست کا کیا پتا ہے, جنہوں نے ساری عمر جو ہے اے فار امریکہ, بی فار برائب, سی فار کرپشن, ڈی فار ڈالر, یہ ABCD تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام. ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ ہے, وہ تم لوگ وہ. یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. عمران خان جیل سے کلیئر کٹ میسج دے رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب, عمران خان جیل سے بول رہا ہے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار DGI اور چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا, سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت کا وہ بانی ہے, سابقہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر جو ہے قوم کو سیریس ہونا چاہیے, اس پر اداروں کو سیریس ایکشن لینا چاہیے. ہمارے ساتھ بار بار ظلم ہوا. کہتے ہیں سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اگر سیاست میں کام نہیں ہے تو 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی, ریجیم چینج آپریشن کی پلاننگ کس نے کی. ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے عدالتوں میں مداخلت کر رہے ہیں, ججز لیٹر کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں. اچھا, ججز اتنے پہ بس کہ جو بندہ چاہے نیشنل پریس کلب میں وہ پریس کانفرنس کرے تو اس کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ سزائیں بھگت رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف, یہ کہاں کا قانون ہے, کون کروا رہا ہے؟ اگر ججز بے بس ہیں تو وہ صرف اوپر یہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ بیٹھا ہوا ہے, جن کے باہر ملکوں میں جزیرے ہیں, صرف وہی لوگ جو ہے ان کو دمکا سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں, اور ان کو ڈرا بھی رہے ہیں, دمکا بھی رہے ہیں. اگر ججز لیٹر کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے, عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ ہم GHQ نہیں جا سکتے, ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے, تو ان کی جرات کیسے ہوئی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. ہمیں لیکچر نہ دو, اپنی لیڈرشپ سے پوچھو کہ وہ وہاں گئے کیسے ہیں, انہوں نے ہاتھ کیسے ڈالا. اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے. جنہوں نے ایسا کیا, جو ملوث ہیں اس میں, ان کو سریعام ٹی چوک پہ پھانسی دے تاکہ پھر آئندہ نسلوں تک یہ سزا وہ یاد رکھے اور کوئی بھی جو ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جناب اسپیکر, آخر میں جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں صاف پیغام دینا چاہتا ہوں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان شخصیت نہیں ہے. عمران خان ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے جو ہمارے دلوں میں کر چکا ہے. میرے جذبات سے واقف ہے میرا قلم, میں عشق لکھتا ہوں اور وہ عمران خان لکھتا ہے. ہمیں عمران خان سے عشق ہے, ہمیں عمران خان سے جنون کی حد تک عشق ہے. اور یہ صرف ہمیں نہیں, 25 کروڑ عوام کے میکسیمم لوگوں کو جو ہے عمران خان سے عشق ہے, 80-90%. اگر کسی نے بھی عمران خان کی طرف میری آنکھ سے دیکھا, یا آج جو وہ بڑی منہ والا ہے, اس کا کس نام ہے, فیصل واوڑا سر, وہ سینٹ میں جو ہے ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کر رہا تھا, CM صاحب کے خلاف باتیں کر رہا تھا, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کا پٹو ہے, کس کی بولتا ہے. اس کی اتنی اوقات نہیں ہے
कि वो 2 बंदे इकट्ठे कर सके, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके, इलेक्शन जीत सकते, लेकिन किसी ने उसको जो है सेनेटर बना दिया, 2 टकी की औकात नहीं है, वो हमारे बारे में बोलता है। हम ये बताना चाहते हैं कि लोग तंग हैं बेरोजगारी से, महंगाई से। कोई महंगाई से खुदकुशी कर रहा है तो कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता, उसकी वजह से खुदकुशी कर रहा है। मर तो वे वैसे भी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान की चुटकी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन इमरान खान ने चुटकी दी तो बांग्लादेश तो छोड़ें, आप पूरी दुनिया की इनकिलाब भूल जाएंगे और अवाम का समंदर आप पाकिस्तान की रोडों पर देखेंगे और फिर किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा लैना इल्लल बला। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूं इंशाअल्लाह। हम में से जो भी खान का वफादार नहीं है, अल्लाह उसकी नस्लों को, अल्लाह उसको, उसके पूरे खानदान को गर्क करे। और जो लोग ये जानते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान से ज्यादती हो रही है और फिर भी खड़े नहीं हो रहे, अल्लाह उनको भी गर्क करे, उनकी नस्लों को भी गर्क करे। क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ नहीं है आज, इमरान खान के साथ नहीं है, इसका मतलब है वो असल गद्दार है इस कौम का। और गद्दारों को अल्लाह गर्क करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे एमपीएस को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा, तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हमें इस शख्स इमरान खान ने ये चीज सिखाई है। आज वो जेल में है, वो जितने हुक्म देगा फिर तुम्हें बताएंगे, तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं, अब तो तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो और वो है कि तुम मार सकते हो जान से। और ये हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है। जितना दुखाना था, जितना तड़पाना था, जितनी बेइज्जती करनी थी, घरों में घुसना था, बेपर्दगी करनी थी, जबर करना था, टॉर्चर करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो उसे तुम हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि वो मौत है। और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के हाथ में अगर मौत है तो अगर हमारा वक्त मुकर्रर है, हमारा ईमान है, फिर तुम्हारा वक्त भी मुकर्रर है। तो उसको भी सोचो, फिर वो वक्त तुम्हारे पे भी आ सकता है, क्योंकि वक्त तो मुकर्रर है। तो मैं ये मैसेज देता हूँ, जिस तरह उमर अयूब साहब ने बात की कि 9 मई के ऊपर आप झंडा लहराएं तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ, तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा एक ही झंडे पे लगा लो। ये पैगाम मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूँ, बाहैसियत वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे रहा हूँ कि एक ही डंडे पे 2 झंडे लगाओ, एक पाकिस्तान का, एक तहरीक इंसाफ का। और तुमसे कोई वो डंडा और झंडा छीनता है, मुझे वीडियो भेजो, जो ऐसे चोर जो सिपाही होगा उस पे खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी का पर्चा होगा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और फिर वो आएगा जब यहाँ पर, फिर वो जो हमारी रिवायत है ना इज्जत देने वाली, फिर वो रिवायत नहीं होगी, वो इज्जत देने वाली रिवायत नहीं होगी। वो रिवायत फिर होगी, वो रिवायत जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने पहले इस्लाम की जगह लड़ी, फिर तहरीके पाकिस्तान की जगह लड़ी। तो आज फिर हमें मजबूर ना करो कि आज हकीकी आजादी के लिए हम उस जंग पे मजबूर हो जाएं। हमारी रगों में वही खून है। अगर हमें रोक रहा है तो पाकिस्तान का कानून और इस शख्स का सबर रोक रहा है, इस शख्स का सबर। इस्लाह कर लो अपनी। और तुम अगर ये समझते हो कि हमें धमकियां दे रहे हैं, हम धमकियां नहीं दे रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा कितना ज़र्फ है और हमारा कितना ज़र्फ है, और हमें पता है कि तुम क्या और हम क्या है। एक से अच्छी तरह हम पहचान चुके हैं किसके क्या इंटरेस्ट है, कौन पाकिस्तान से वफादार है और कौन पाकिस्तान का गद्दार है। ये सर्टिफिकेट तो हमें ना दो, हमारे ऊपर तो तुम गद्दारी के लगा चुके हो। शर्म का मकाम है कि हमारे ऊपर गद्दारी के हमारे ऊपर सर्टिफिकेट देने वाले कौन थे? शायद जिनके बाप दादे ने कभी पाकिस्तान के लिए जंग ना लड़ी हो।
मुझे बीच में एक जगह पर मौका मिला, मैंने बात की, मैंने कहा मेरे अबू अजदाद ने तहरीक पाकिस्तान की जंग लड़ी, पाकिस्तान की 2 जंगें हुई, दोनों मेरे बाप ने लड़ी, फिर कारगिल की जंग हुई वो मेरे भाई ने लड़ी, आपने मेरा फोटो लगाया दीवार के ऊपर के गद्दार वतन, तुम मुझे बताओगे तुम्हारे बाप ने कौन सी जंग लड़ी है और तुमने कौन सी जंग लड़ी है, तुम कौन सी जंग लड़े हो? ज्यादातर तो वो लोग बैठे हो कि जंग लड़ी ही नहीं है, लड़ी है तो हमारे साथ लड़ी है, मजलूमों के साथ लड़ी है, निहत्तों के साथ लड़ी है। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट, इस तरह के हरकत और जो मुसल्लत किया है, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो कौन है? वो थारोब्रेड घोड़े नहीं है, न थारोब्रेड घोड़ी है, वो लूले लंगड़े हैं। ये थारोब्रेड बैठे हैं इधर, थारोब्रेड घोड़ों की हिस्ट्री पढ़ो, थारोब्रेड है ये थारोब्रेड घोड़ियां हैं, ये थारोब्रेड घोड़े हैं। जब ये दौड़ते हैं गैलप पे तो फिर अगर सवार अपने हाथ यूं खोल भी दे तो इनकी रफ्तार कम नहीं होती है, समझ जाते हैं कि सवार सकून में है, अब दौड़ते जाओ, जो नीचे आता है उसको रोबोटते जाओ। तो हमें मजबूर ना करो इस बीच पे। आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे में कमी होगी, आपने मेरा बाजू बनना है, आप में कमी होगी, मैंने आपका बाजू बनना है। खुदा के लिए एक दूसरे के बाजू बनो। आज का ये माहौल यूनिटी के लिए है, इत्तेफाक के लिए है, इत्तेहाद के लिए है। मेरी में कमजोरी है तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे वो भाई कमी पूरी करेंगे। हमारे वो इलाके जहां पे हमारे दोस्त नहीं निकल पा रहे, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके कंधे बने और जाके उनकी मदद करें, उनको निकालें वहां पर, बजाय तनकीद करने के। अगर जिस दिन हमने ये कर लिया, जिस दिन हमने अपने आप को कंधा देना शुरू कर दिया, तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। इमरान खान को रिहा तो इनका बाप भी करेगा। कब तक तुम इमरान खान को अंदर रखोगे? रिहा तो इमरान खान ने होना ही होना है। अब ऐसे रिहा हो जाए कि हम इस कानून को सलाम करें, बजाय कि कल हम खुद रिहा करवा लें और फिर उसके बाद एक नया रिवायत बन जाए कि रिहाई कानून में नहीं, कानून के जरिए नहीं, अवाम की ताकत से हुई है। अवाम की ताकत से डरो, खुदा का वास्ता है, अवाम की ताकत से डरो। इस लीडर जो कि आलम इस्लाम का लीडर है, पूरे पाकिस्तान का लीडर है, आपने उसका मैंडेट तो छीन लिया, हमारे दिलों से नहीं छीन सकते। इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले अपना मैंडेट मिलेगा, मैंडेट मैं लेके रहूंगा। तो इमरान खान कह रहा है कि मैंडेट लेगा तो हम मैंडेट लेके रहेंगे, और ये मैंडेट हम अभी तो मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है अदालतों से, निजाम से कि अपनी इस्लाह करेगा और दे देगा, वरना फिर छीन के लेना हम जानते हैं, इंशाल्लाह फिर हम छीन के भी ले लेंगे। एक 5 सेकंड के लिए सारे लोग इमरान खान की आंखों में देखें, जरा 5 सेकंड लगातार देखें आप सारे। इमरान खान की आंखों में आपको पहली बात जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि हारता वो है जो हार मान लेता है। ये सारी मत सिखाया है उसने हमें। अब देखिए जलसा हो रहा है, पूरी पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद को सील किया गया था। पूरी पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद के लोगों को यरगमाल बनाया गया था। क्या एनओसी नहीं मिली थी? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शन नहीं दी थी? क्या इसमें कोई एक ऐसा काम है जो इलीगल और गैर कानूनी था? और इसमें आपने जो रुकावटें खड़ी की, आपने तो तौहीन अदालत तो आपने की है, कानून की खिलाफ वर्जी आपने की है। मैं तो समझता हूं कि हमें सबसे पहले आईजीपी के खिलाफ और जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ जो है ना अदालत में जाना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी तो इन्होंने की। अच्छा, आप जो है ना फिर कहते हैं कि हमारे नाम न लो। क्या तुम कोई मुकद्दस गाय हो? मुल्क की तबाही, माशी तौर पर मुल्क बैठ रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल गंदम का आया पंजाब के किसानों को आपने ख्वार किया, जलील किया, उससे रिज़्क छीना, उस पर कोई एक्शन नहीं दिया। आपने 8 फरवरी पे सबसे बड़ा डाका डाला। आप कहते हैं कि मैं आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मुखातिब हो रहा हूं, उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मुल्क को बचाना है तो सबसे पहले जो इदारे गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर अपनी हुदूद से बढ़कर जो किरदार अदा कर, उसको रोकना होगा। पाकिस्तानियों, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाला बदल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, उसने आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। हम एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
आज से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर रहा हूं। जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई समझता है कि मैं जेल में रहकर अपनी जगह से हिल जाऊंगा तो ये खाम ख्याली है। तमाम उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूं। अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं उसके सामने खड़ा हूं, समझौता नहीं करूंगा। कौन सुन ले मैं उनकी खातिर जेल में हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज बता रहा हूं मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। उन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले, ये आपको गुलाम बना रहे हैं। खफिया इदारों को मुल्क की बड़ी जमात PTI ख़त्म करने लगा दिया गया। खुफिया इदारों का काम दहशत गर्दी ख़त्म करना है। यास्मीन राशिद 70 साल की औरत और कैंसर सर्वाइवर है, उसे जेल में रखा हुआ है। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जरूरत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। अब जजेस को धमकियां दे रहे हैं, सरगोदा के जज को उठा कर ले गए जो आज किया जा रहा है। कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो आज किया जा रहा है। बलूचिस्तान में पोतले बैठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। इख्तर मेंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। हमें कहते थे कि TTP हमारी वजह से है, तो फिर BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है? दहशतगर्दी पर। अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कह रहे हैं, आपने वहां जाकर दहशतगर्दों TTP पर हमले भी किए हैं। ये सारे बहाने हैं दहशतगर्दी खत्म करने के लिए। 3 डायमेंशंस होती हैं, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। आप 2004 से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक कितना फर्क पड़ा है? फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, उससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। फैसला करने वालों के पास ना अकल है और ना उनके पास अखलाकियात हैं। मोहसिन नकवी के पास कोई तजुर्बा नहीं, उसके पास कोई काबिलियत नहीं है। मोहसिन नकवी की सिर्फ ये काबिलियत है कि उसे आर्मी चीफ पसंद करता है। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिजास्टर हुआ, मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा। दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। बांग्लादेश ने हमें फेंटा लगा दिया है, इससे नीचे हमारी क्रिकेट नहीं गिर सकती। अक्टूबर 21 में हमने भारत को 10 विकेटों से हराया। ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बेरून मालिक में है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने लगे हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड सामने ना आ जाए। इस मर्तबा भी मुल्क में तारीख की सबसे कम सरमायाकारी आई। हुक्मरान कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। जिससे महंगाई का नया तूफान आने वाला है। दुबई में तारीखी सरमायाकारी पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता और 2.5 साल के दौरान की है। हमारी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान बना में उस वक्त ढाका में अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था। बलूचिस्तान का हल यह है कि वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहां गौरबत है। मुल्क भर में जेन्युइन लोकल बड़ी इलेक्शन की जरूरत है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वह नीचे पहुंचती ही नहीं। इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आएगी सबसे पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे, जिसका प्लान बना रखा है। गोलियां भी है, लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। जिस इमरान खान का नाम चलने पर पाबंदी थी इस मुल्क में, इस हुकूमत की हरकतों की वजह से, मज़ामत की वजह से आज इमरान खान पूरी दुनिया में बनी। जिसका नाम कभी चलता था मुन्ने के अब्बा, कासिम के अब्बा, मक्खन के अब्बा, लड्डू के अब्बा, इस तरह के नाम, आज वो इमरान खान इस ऑक्सफोर्ड की वजह से जिसका नाम ये दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, आज उसका नाम अच्छा है या बुरा है, आज पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड का मतलब है नादिर साहब पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन लॉबी भाई, जिसके वोटर 2.5 लाख से ज्यादा है और पूरी दुनिया में फैले हुए। पूरी दुनिया में 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स है और 2.5 लाख लोगों तक तो नाम पहुंच गया ना कि इमरान खान नाम का एक आदमी है जो उम्मीदवारों की फहरिस्त में है। तो आप उसका नाम खर्चने चले थे, मिटाने चले थे। मिटाते मिटाते वो कहते नमाजें बख्शवाने गए, रोजे पल्ले पड़ गए। इमरान खान को मिटाते मिटाते इमरान खान को एक फिनोमेना बना दिया इन्होंने। इमरान खान को एक आइडियोलॉजी बना दी है। इमरान खान को एक आलमी हकीकत बना दिया। ये छोटे से मुल्क से निकाल के
ایک چھوٹی سی جیل کے قیدی نمبر 804 کو عالمی حقیقت بنا دیا انہوں نے، عالمی حقیقت بنا دیا. کیا حاصل کیا آپ نے؟ بال نوچے اپنے بال نوچے آپ، ٹکرے مارے دیواروں میں جا کے، یہ آپ کا حاصل وصول ہے. آکسفورڈ چانسلر کے بعد ایک اور معرکہ، عمران خان کے لیے نوبل ایوارڈ کی تیاری. عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بن سکیں گے یا نہیں، فیصلہ اگلے ماہ ہو جائے گا. ایسے میں تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے ایک اور بڑی خبر آ گئی. بانی پی ٹی آئی کو اب نوبل پرائز بھی دلوایا جائے گا. ایوارڈ کب اور کیسے ملے گا، کپتان کے کھلاڑی نے سب بتا دیا. تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایک طرف جہاں عمران خان چانسلر کی ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہیں اب نوبل پرائز کی ریس میں بھی شامل ہونے والے ہیں، اور ان کے بیرون ملک موجود کھلاڑیوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ مخالفین کو ایسا سرپرائز ملے گا کہ وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مگر کوئی روک نہیں سکے گا. کہانی یہ ہے کہ امریکہ میں موجود پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں شہباز گل نے لکھا، اگلے مہینے سے ناروے میں یورپی اور پاکستانی یورپی شہری مل کر عمران خان کے لیے ایک اہم کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو امن اور غربت مٹانے کے لیے کام کرنے پر نوبل پرائز دلوانے کے لیے مہم شروع کی جائے گی. یہ مہم صرف پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر نہیں کرے گی، بلکہ انسانیت کے تمام دوست پاکستانی اور غیر پاکستانی اس کا حصہ ہوں گے. جلد آپ کو گراؤنڈ پر بھرپور کام ہوتا نظر آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ شہباز گل اپنے اس کام میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. میں ایبسلیوٹلی ناٹ والے نعرے لگانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیل مجھے مارنے کے مترادف ہیں. شہباز شریف نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. عمران خان کو یورپین یونین کے ایمبیسڈرز کی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. یورپین یونین کی کونسل کا پریزیڈنٹ اس نے مجھے کال کیا، اس نے کہا عمران خان ہم تمہاری مدد چاہتے ہیں کہ روس کی اور جو یوکرین کی لڑائی ہے، تمہاری طرح کے لیڈر ہم چاہتے ہیں جو بیچ میں پڑھ کے امن لے کے آئے. شہباز شریف جوتے پالش کرنے والے ان کو یہ نہیں پوچھتے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے. ایک اچھے تعلقات کو تباہ و برباد کیا گیا، سائفر لہرایا گیا. میں کبھی نہیں کہتا کہ ہم امریکہ یا یورپین یونین سے اپنے تعلقات خراب کریں، بلکہ اچھے کرنے چاہیے. لیکن شہباز شریف، میں یہ کہتا ہوں کہ تعلقات اچھے کرنے میں اور ان کے جوتے پالش کرنے میں بڑا فرق ہے. جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے، اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا پاپا تھا، تمہارا جنرل تھا. اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ڈی جی سی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا. اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں. اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو. اور تم نے اصلاح نہ کی، تمہیں جواب دینا پڑے گا. آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں. میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا، میرے گھر میں وردیاں ہیں. میرے باپ نے جگہ لڑی ہے، میرے بھائی نے جگہ لڑی ہے، اس فوج کے لیے قربانی دی ہے. اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے. یہ ہماری فوج ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں. بارڈر میں لڑنے والا ہر فوجی ہمارا بھائی ہے. لیکن وہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. ہم ان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے. سادھو کی جتنا جھوٹ اس قرآن کے نیچے بولا جا رہا ہے نا، I swear to God میری ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. You PDM have destroyed this country for what purpose?
آپ کو خان کا چہرہ نہیں پسند تھا, باجوہ کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا دیا, نو پرابلم, ٹھیک ہے, نہیں پسند خان صاحب, الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ 4 ہفتوں کے اندر اندر الیکشن کراتے, 6 ہفتوں میں کراتے, آنا تو انہیں نہیں تھا. بٹ پرابلم یہ تھا کہ پہلے چاچا کو پرومس تھا پی ایم آفس, پھر اس کی بھتیجی کو پرومس تھا, پھر کسی اور کے بیٹے کو پرومس تھا. یہاں پہ ان الیکٹڈ بیٹیاں آ جاتی ہیں, کوئی الیکشن کرتا نہیں ہے. سر, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ووٹ کو عزت دو, اس کی تو دھجے اڑا کے رکھتی ہیں. ٹھیک, آپ کو پی ٹی آئی نہیں پسند, آپ کو پاکستان سے کیا دشمنی ہے؟ 46 سال سے اس ملک میں یہ 2 خاندان ٹک ٹیک کھیل رہے ہیں. اگر پاکستان ٹھیک کرنا ہوتا تو کس نے روکا تھا ان کو؟ ٹھیک کر لیتے. 3 دفعہ ایک پرائم منسٹر, ایک خاندان, تیسری دفعہ دوسرا. یہ جو ہمارے لوگ آئلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ہمیں سرو کر رہے ہیں, جو ہمارے گھر میں ملازم ہیں, ان کے بچے بچیاں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم پی ایم بنیں گے یا ہم سی ایم بنیں گے اگر نام کے پیچھے زرداری اور شریف نہ لکھا ہو؟ A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. اب یہ ضرب استحکام, I don't know یہ ترین صاحب کی پارٹی سے ان کو کیا پیار ہے. By the way اسپیکر صاحب, اب مجھے پتا ہے اس پہ ناراضگی ہوگی, بٹ ہو جائے, doesn't matter, مجھ پہ پہلے ہی بہت پرچے کٹے ہوئے ہیں. ہماری 2 خواتین تھیں پی ٹی آئی کی, جن کا کور کمانڈر ہاؤس سے دور دور کھڑی تھی. ایک آج اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ایک آج جیل میں بیٹھی ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک نے معافی مانگ لی ٹی وی اینکر سے, اور ٹی وی اینکر نے معاف کر کے آئی پی پی میں بٹھا کے اس ہاؤس میں لے آئے, اور دوسری بیچاری جیل میں سڑ رہی ہے. ایک 3 اسٹار جنرل کی وائف, 3 اسٹار جنرل, اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ ہاتھ میں مائکروفون اور لبرٹی میں کھڑی تھی. That is it, sir. So this is the honesty and decency with which we deal with the women in our country. Punjab is the backbone of Pakistan, honorable speaker. Punjab نہیں ہو تو پاکستان نہیں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جس عورت نے کرونا سے اور کووڈ سے پورے پنجاب کو, پورے پاکستان کو بچایا, اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا. Because that is what she deserves. جو چور ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, اور جو شریف ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ, یہ تو اس ملک کا حال ہے سر. جائیں گے کہاں سر؟ میرے پاس تو فورن پاسپورٹ بھی نہیں ہے, ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے 10 حلقے میں لوگ ہیں, 10 لاکھ, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ 2 ڈفرنٹ پرائم منسٹرز نے یہ بات کہی ہے اس وطن میں. شرم کی بات ہے کہ جس نے جانا ہے تو چلا جائے. کہاں جائے؟ 350 بندہ ایک بوٹ میں کیپسائز ہو جاتا ہے. کسی نے ان کے خاندانوں کا پوچھا؟ کوئی پینشن دی, کوئی پلاٹ دیا, کوئی تمغہ دیا ان کو؟ This is what we're doing to our youth, honorable speaker. In the last 2 years, آپ کے پاکستان سے 15 لاکھ پڑھے لکھے بچے بچیاں چلی گئی ہیں. بہت عظیم پاکستان ہے. ایکسپورٹس کی شرح دیکھیں, فائنانسنگ کی شرح دیکھیں. یہ ہم تو نہیں کہتے سر, جو کتاب ہے یہ لوگ چھاپ رہے ہیں, میں تو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اب ضرب استحکام آ گیا, اور یہ استحکام ہر دفعہ بلوچستان میں اور کے پی میں آتا ہے. یہ نہیں سمجھ آتی. خان صاحب کی 3.5 سال حکومت تھی, نہ ڈرون تھا, نہ ٹیررسٹ تھا. اینڈ the second خان صاحب goes, ٹیررسٹ آ جاتے. But sir, you are the custodian of this house and I expect you to take this up with people who matter. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بے وقوف ہے یا افغانستان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کے پی میں یا بلوچستان میں لے گا, یہ خواب دیکھنے والی بات ہے. جو پنجاب اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے, سر آپ کی سوچ ہے. سو خدا کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ عوام, ہم ریاست ہیں, not me the MNA, my people. Talk to us. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. خان صاحب کو بہت many people I'm sure they hate خان صاحب and they have probably every right to. لیکن ایک بات میں بتا دوں اسپیکر صاحب, وہ بندہ پنجابی, سندھی, سنی, شیعہ, بلوچی, AJK کی بات نہیں کرتا, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاکستان میں, اور وہ اسی لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ جب تک ڈیوائڈ اینڈ کانکر نہیں ہوگا, یہ ملک غلطی سے کامیاب بھی ہو سکتا ہے, یہ ملک غلطی سے مالدار بھی ہو سکتا ہے, خوشحالی آ سکتی ہے. غریب مانگتا کیا آپ سے اسپیکر صاحب؟ یو بینگ دا گورنمنٹ. اسکول, ہسپتال, صحت کارڈ تو مریم بی بی نے کاٹ دیا. دوائیوں پہ 18% ڈیوٹی اس کے چاچا نے لگا دی. سر لوگ کہاں مرے یہ تو بتائیں. پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں. میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ کے پی اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک. اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا. اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آئی آر, ایک سیڈیشن کی کٹی, دوسری کٹی, پرواہ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب, جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے, آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے. اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نا ختم ہی نہیں ہوں گے. I won't even go into that. But let me tell you one thing sir, میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسوں 12 فیڈر کھولے جو 10 مہینے سے بند تھے. They are punishing KP
for giving a vote to Imran Khan. اور سر یہ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی. ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر, ابھی بھی وقت ہے. ہم ایک بہادر شاہ ظفر تھا, ایک ٹیپو سلطان تھا, ٹھیک ہے. ایک بہادر شاہ ظفر تھا جس نے بجائے لڑنے کے مرنے کے وہ جا کے غلامی میں زندگی گزاری. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان ہمارے لیے, سارے پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے برصغیر ہے کہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا. 3 فوجیں آ رہی تھی مراٹھوں کی, ایک مسلمان بھی ہمارے جو میر جعفر تھے نظام حیدرآباد, اور گوروں کی. اس نے کہا, پتا تھا کہ ہار جانا ہے, ٹھیک ہے, لڑ کے مرا. آج تک ساری زندگی جب تک ہماری تاریخ ہے کہ ہندوستان کی لوگ یاد کریں, میں غلامی سے زیادہ موت پریفر کرتا ہوں. میں غلام نہیں بن سکتا, میں کبھی بھی امریکہ یا کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. عمران خان کم از کم معاف کر دے آپ. کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں کسی غیرتی انسان نے مقبوضہ کے سر پر ایسی بازی نہیں لگائی جو عمران خان نے لگائی. یہ بات ماننی چاہیے. حق کو حق کہنا حق پرستوں کا طریقہ. دن بھر رات بھر وہ کبھی ایک ملک کے بادشاہ کو منت کرتا ہے کہ ہمارے بھائی کشمیر میں گھیرے ہوئے ہیں, مودی موزی زمانہ لعنتی انسان, خدایا ایک خاص قسم کا قہر اس ظالم پر نازل کرے اور ہندوستان کے مسلمان اور مقبوضہ کے مسلمان اس سے چھڑا لے. تو عمران خان لوگوں کو منت سماجت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کے دل پر بھی رحمت نازل کرے. میں عمران خان کو اس کے گھر لے جاؤں گا. بالکل. تاریخ نے یہ رقم کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانوی سامراج کی غلامی کی زنجیریں توڑی اور ایک آزاد ملک پاکستانیوں کے لیے بنایا. لیکن پچھلے 75 سال کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہمارے چند لیڈرز اس ذہنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکے. آج 75 سال بعد ایک لیڈر ایسا آیا جس نے یہ کوشش کی کہ ذہنی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑا جائے, لیکن وہ سازشوں میں گھر. آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے, 4 پل بنا کے, 2 تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں. میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں, مکہ میں کتنے پل بنائے تھے, کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا, کوئی سڑک نہیں بنائی. کیا بنایا؟ قوم بنائی. جب قوم بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں, سڑکیں خود بن جاتی ہیں. ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے آئیں, وہاں ہماری حکومت ہے, ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے. کیا کر لو گے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ میں کے پی چاہے ہم ان کو آرڈر کرے, آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے. آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 ایم پی اے کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا. ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا. ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا, بڑی بدتمیزی کی, پر میں نے کہا نہیں, ہم نے نہیں کرنے. ہم نے ٹٹ فار ٹٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپینڈ کرنا. آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو, ہم نے نہیں. جس اسپیکر نہیں, پلیز نہ کریں, میں ابھی کر رہا ہوں, پلیز مائنڈ اپ کریں. اچھا ایک جناب اسپیکر, ہم اسٹاپ نہ کیا کریں, ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو, سیاسی قوتیں مضبوط ہوں,
तो गैर सियासी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ईमान मजबूत हो, सियासत मजबूत हो, खुदा की दुनिया में, इस मुल्क में, ऐसा सरजमीन पे खुदा के कानून हो, सालिहीन हुकूमत करे, इसके लिए निकले हुए हैं। जनाब स्पीकर, ये हम मुतालिबा कर चुके हैं, मुतालिबा कर रहे हैं आपसे। हमारे 10 एमएनए जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है, मैं खुद और अपने साथियों के बिहाफ से पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था, लेकिन हमारे राइट्स मजरू हुए इस ईवान से हमें उठा के। मैं उनको ये जरूर कहूंगा जनाब स्पीकर कि आप एक रूलिंग कल दे चुके थे, उनको आपने प्रोड्यूस कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है और इसलिए इस ईमान का तकद्दुस पामाल हुआ है। जनाब स्पीकर, मैंने आपको गुजारिश कराया, आपका सर्जन एंड आर्म आईन ने आपको सेपरेट सेक्रेटरीट दे करके ये प्रोटेक्शन सिर्फ इस ईवान को है, इस लेजिस्लेचर को है, किसी और अर्गन के पास नहीं है। इसलिए उसकी आपने इंक्वायरी करनी है। इस मर्तबा आपने हमारे साथ वीडियो ऑडियो सब कुछ शेयर करना है। आपको ये मालूम है वो जो हमारे 10 एमएनए आएंगे यहां, वो आपको रिदात सुखाएंगे कि उनको वहां बिठा के उनके साथ क्या सलूक किया गया। इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके एमएनए सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर की वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा। नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए। ये हमारा एहतजाज है, मेरे इल्म में आया है। बिलावल साहब ने भी कोशिश की है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। ये ईमान को अगर हमने चलाना है और इस स्ट्रगल को हमने आगे लेके जाना है, तलखियों को हमने काम करना है, तो जनाब स्पीकर इसको ना भूल जाइए। ये कारोबारी सियासत, कारोबारी जमा खर्च नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा, ये 1 भी नहीं रहेगा। जनाब स्पीकर, खुदा ने कौमों को जो तबाह किया है, एक कौम की जलालत इस वजह से हुई तबाही कि अल्लाह का कुरान में फरमान है, वहिज़ा बत्वश्तुम जब्बारी। जब वो पकड़ते भी थे तो जब्बारीन की तरफ जुल्म करके पकड़ते थे। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया हुआ है कि मैंने 4 बंदों के अहल को पसंद फरमाया था, आल इब्राहिम, आल नूह और आल इमरान को। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में स्पेसिफिकली फरमाया कि उनके बाद मैंने उस कौम पे बनतोड़ सैलाब भेजे और उनको चंदेरियां दी। रीजन ये कि नमाज छोड़ चुके थे, शहवत नफ्सी की फरमानी करते थे और लोग उनके नाखलफ थे। नाखलफ का मतलब मौजूदा वक्त में क्या होगा ये आप खुद सोचें। जनाब स्पीकर, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे एमएनएस को आप आज के सेशन में जरूर प्रोड्यूस करें। ये आपका ऑर्डर हुआ था, ये मिनिमम है जो आप आज काइंडली मेहरबानी कर ले, ये कर दे। और हम इंतजार करेंगे कि आपकी इंक्वायरी कहाँ खत्म होती है ताकि हम फिर नए लाए अमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। नेल्सन मंडेला की एक बड़ी फेमस saying है, उसने कहा गुर्बत इंसाफ खत्म करता है, इंसाफ खुशहाली लेके आता है। जब तक अदलिया स्टैंड नहीं लेगी रूल ऑफ लॉ के लिए, यहाँ यानी रूल ऑफ लॉ का इंसाफ का मतलब ये कि ताकतवर को जब तक वो कानून के नीचे नहीं लेके आती, मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब तक ये कौम आजाद नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं आएगा। इंसाफ तो आने दिया ही नहीं है, ये ऊपर से जो संभाल के बैठे हुए सिस्टम, ये तो कानून के ऊपर है। चोरी करें, सब कुछ हो रहे हैं, एनओरो मिल जाता है, ताकतवर को पूछने वाला नहीं है। मुझे गोलियां लगती हैं, मैं अपनी FIR नहीं कटवा सकता क्योंकि दूसरा इतना ताकतवर था। और ये कमजोरों से हर रोज जब ताकतवर से टाकरा पड़ता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। अब तो हम वो पहुंच गए हैं, मुझे तो नहीं याद, ये तो वो 32 मार्शल लॉज में पहुंच गए हैं। हमारे तो सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए आज। मैं कभी इस जुल्म और इस ताकत के हुक्मरानी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। और मैं आज आप सबको कहता हूं, आपने कभी नहीं झुकना, क्योंकि एक मेरी बात याद रख लेना, जिस दिन आपने इस जुल्म को कबूल कर लिया और ये नाइंसाफी के निजाम को, मुल्क नहीं रहेगा।
कोई कौम नहीं सरवाइव करती इस तरह। जिस कौम के अंदर इस तरह का जुल्म होता है वो नहीं सरवाइव करती। तो हजरत अली का कौल है कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमें जो डिक्टेटर मिले हैं वो डिक्टेटर में बड़े 2 नंबर मिले हैं। 1 नंबर डिक्टेटर होता तो क्या करता? 1 नंबर डिक्टेटर होता तो वो कहता मैं डिक्टेटर हूँ, मैं 5 साल के लिए आया हूँ, मैंने आपके सारे इदारे ठीक करने हैं, उसके बाद मैं इलेक्शन करवा दूंगा। मेरी बात, वो 2 नंबर डिक्टेटर कहता है नहीं मैं जमहूरी हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, पहले अदालतों का बड़ा करता है, इलेक्शन फ्रॉडलेंट करता है, असेंबली डमी ले आता है, प्राइम मिनिस्टर डमी ले आता है, उससे सारे अदारे भी खत्म हो जाते हैं और सारे क्रिमिनल्स को अपने साथ मिला लेता है। इस मुल्क के अंदर नेचुरल लीडरशिप इसलिए डेवलप नहीं हो सकी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो भी पावर स्ट्रक्चर है वो उन लोगों को ऊपर लेके आता है जो कंट्रोल हो सके। जो लीडर होता है वो कभी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने मंशूर से कंट्रोल होता है। तो यहाँ नेचुरल लीडरशिप को ऊपर आने नहीं देते। मसला क्या है पाकिस्तान का? जो पावर में आता है, जो जुडिशरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने बीच में, यानी कि जुडिशरी जो है वो बजाय चेक करने के लिए पावर को, वो पावर का हिस्सा बन जाती है। इधर से सारी खराबी होती है नीचे थाने तक। जब तक पावर स्ट्रक्चर को चेक और बैलेंस नहीं आएगा इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम से ऊपर से, तब तक नीचे थाने तक प्रॉब्लम रहेंगे। मैं आज एक शहरी हूँ, मेरा हुकूमत या जो भी पावर में बैठा हुआ है, फौजी है या एक रूलिंग पार्टी का एमएनए है या मिनिस्टर है, अगर मेरा उससे मसला होता है तो मैं किधर जाऊंगा? अगर अदालतें आजाद होंगी तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देखिए एस्टेब्लिशमेंट 2 चीजें करती है। हर हल्के के अंदर मुजरिम पेशा लोग होते हैं। जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट उनको सिग्नल करती है उधर जाते हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, उनको खौफ होता है थाने से। तो जब उनको पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक कैंडिडेट के साथ खड़ी होगी है तो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। मुजरिम पेशा लोगों की तहफ़्फ़ुज़ होता है गवर्नमेंट के साथ। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। हमारा जो सारा निजाम है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ एजेंसीज या पार्टीज को चलने नहीं दी। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब टीवी पे आते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना कुछ कह रहे हैं, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं। बात किसी से नहीं बन रही। नाअहल, नालायक खिलंडरों का टोला, वो उसको यहाँ पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया और 22 करोड़ अवाम को कर दिया गया। स्टॉक मार्केट नील बोस हो गई और आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत है, अंदर गुर्बत और महंगाई है और बाहर की तन्हाई है। ये आलम है पाकिस्तान का। सबस परचम की इज्जत का हाल ये है कि $1 बिलियन की के लिए भीख मांगने के लिए पिस्तौल लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है। क्रेडिट मिलना चाहिए। भी बेचारा देखें घर से बेघर हुआ होगा, क्या कसूर इसका, क्या किया इसने, क्या क्राइम, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है, क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से इमरान खान का बैठे सबसे पूछे किसने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई? ये इमरान खान यहाँ बैठे और इनकी टीम ने। अस्पताल किन्होंने बनाए? इन्होंने अस्पताल बनाए और बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहाँ लंदन में भी मुश्किल से देखने ऐसे अस्पताल। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अपना पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है। आपको इस्लामाबाद के मेयर से भी कमतर बता रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो ऐसे ही जैसे इस्लामाबाद का मेयर होता है। भाई ये पाकिस्तान का आपने ही हश्र कर दिया है। इन इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाने और एक दूसरे की शक्ल तक न देखने वाले फिर एक साथ जमा होने की तदबीर कर रहे हैं। उनकी नजरें पीटीआई का वोट लेकर आजाद जीतने वालों पर लग गई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वोटिंग में बगैर बल्ले के सिर्फ कप्तान के नाम पर वोट लेने वाले अवाम के नुमाइंदे भी साबित कदम रहते हुए ये कह सकेंगे कि कुछ भी हो जाए कप्तान तो होगा।